Yes, good evening, all. A very good evening to everyone. Myself, Amol Kapse, working as assistant professor at MIT AOE Alandi, Pune, Maharashtra. I am the founder and faculty coordinator of this Shutterbugs Photography Club since its year of establishment, that is 2014, June 2014. The main motto and the aim of this Shutterbugs Photography Club is to encourage the students to build their skills in photography, videography, and post processing. So for last 6 years, we have given good photographers, videographers to the society, and we are going to continue this ahead in the coming future. Now, these 6 days sessions, all these sessions will be conducted by the club members, that is the students. Okay, I'm the faculty coordinator, but I'll not be taking any of these sessions. But the students who has developed their skills to a very great extent for past few years. So these are the students. One by one, I will introduce each of the student. I request all the students, the organizers, to switch on their webcam so that we can introduce every presenter for the upcoming sessions for 6 days. Yes. Yes, others, please switch on your webcam. Raghu, sir, Raghu to झाला start, Vedant to झाला. Pizza and yes, pizza is remaining, I guess. Raghavendra, Yes, sir. So please, yes. can you make Shobit the No need to take the co-organizer? presenter. Okay. Sir, I guess Shobit is into attendees. There has to be a number. I guess. Okay. So, anyways, I guess I've lost the connection. Uh, So around 220 people have joined. Let's wait for some more to join. Then yes. sir can start introducing us. Sanket, sir is saying
to introduce every member. Okay. So guys, It's this laptop. yeah. So I think I am audible to everyone. So we have planned around 6 sessions for these 6 days, from 17th, from today to 22nd. So the 6 sessions we have planned for every session. Like I'll be covering fundamentals of photography today. Then there will be a session on mobile photography which Raghu will cover. Then there will be another session on handling and usage of digital cameras. Rutvik will cover that. Rutvik and Vedant will cover that. And then we'll be having a session on post-processing and editing of the photograph, which again I'll be taking that session. And then there will be a session on LEP, long exposure photography, which Shobit will cover. And then there will be a last session, which is basics of Photoshop, which Vedant will take the session. So here are the this is the plan for our 6 days. So for each day we'll be having our session from 5 to 6:45. We'll be having a doubt session every day, just before our regular webinar, which will be around 4:45 to 5. Those 15 minutes will be for the doubt session. If you have any doubts regarding it, you can ask at that time only. Okay. Okay, I think I should start the session as of now. Okay, so is my screen visible to everyone? Please put your responses in the chat box. Some people are saying no, some people are saying yes. What happened? Let's just wait for some people. They are having trouble in joining. So let's do one thing. Like we'll wait for another 5 minutes for more people to come, because some of the people are having issue while joining the webinar. Uh, Okay, so people are saying now screen is visible. I guess all your problem sorted for now. It's raining and maybe the reason for network issue. Okay. Okay, so here are Tell them around that क्या हुआ? hello Sanket. Let's Yes. just tell them that they can put their queries in this question section. Just give a brief about the GoToWebinar.
So guys, you might be having a question box on your right, so you can put your queries in this box. Okay, so that I can look into it and I will just answer your questions. And after our session, we'll be having a doubt session for around 10 to 15 minutes. Like it will totally depend on the time remaining. So we have planned around for 5 o'clock to 6:45, I guess. So let's see, and we'll start in 2 minutes only. Hello, hello, hello. Yes, sir. Yes. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Sir, एक second. Yes. I'll give you the Sanket, you can go presentation. ahead. Okay, okay, sir. Fine. I think still the people are joining the participant. I think we should start with the introduction. Yes, sir. Like I have completed the introduction. Let's start with the Okay, fine. session. Uh-huh. Okay, fine, So fine. I So, have one suggestion. Some of the people are confused how to raise a question from if you are watching it from the mobile. So you can see a question mark on the top of your screen, and you can ask us a question from over there. Okay. Yes. So many people are responding. Yes. So okay, let's start. So welcome everyone. Good evening. My name is Sanket Urne, and I'll be presenting topic fundamentals of photography for today. What is photography to you? Like, let's raise your hand so that I can see. Uh, who want to answer this question? What is photography? Okay, Vivek has raised his hand. Mr. Vivek, you can unmute yourself and you can answer the question if you want to interact. Okay, anyways. Anyone else? I guess Yash wants to answer. Yes, Mr. Yash, you can unmute yourself and answer the question if you are interested in. Mr. Yash? Some people are saying photography is an art. Yes, definitely. Photography means it's lights sensitive in time. Yes. Some people are saying photography is capturing different angles and emotions in one click. That's a better response. Priyanka is saying photography is a way in which we are able to capture the emotions and story behind the pictures. Absolutely right. Okay. Photography is an hobby. Yes, obviously. We can't. Okay, we can't unmute. Who is saying this? Prathamesh. Photography is the art. Okay, so like so many people are responding this. Photography is an art. So I really like the one response. Like photography is capturing moments, stories, emotions, like whatever looks good for a viewer. Okay.
So what photography is? So basically in photography there are these things you have to follow. So I have just classified them, the 5 things to know. So know your gear. So in photography, what happens when either you have your phone with you to capture a photo, you have your digital camera with you have your film camera with you. So then hold the camera steady. तो क्या होता है कि देखो जब भी तुम फोटोग्राफ ले रहे हो तो तुम्हारा जो कैमरा है, तुम्हारा जो गियर है, वो हाथ में एकदम स्टेडी पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर तुम स्टेडी नहीं पकड़ोगे तो एक तो फोटो तुम्हारा ब्लर हो जाएगा या फिर डीफोकस्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. टेल अ स्टोरी, तो तुम जो भी फोटो खींचते हो तो उसमें से कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लाइक ईदर अ स्टोरी और एन इमोशन, और like a photograph should tell a story, like some story, then capture the mood. So this point I will cover this point in the editing session, what is the mood. Okay, understand the light, then this will I'll cover this topic in the later slide. So sale, so what is sale? So sale मतलब होता है कि composition. तो photography comprises of these 4 topics. like ये 4 टॉपिक अगर तुमको आ गए, अच्छे से समझ गए, तो फोटोग्राफी का जो थेरोटिकल नॉलेज है वो तुम अराउंड 50% कवर कर लिया तुमने, ऐसा हम मानते हैं. ठीक है, तो सी मतलब क्या रहता है कि कॉम्पोजिशन. तो कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या रहता है कि तुम्हारा जो इमेज है वो कैसे कंपोज कर रहे हो, लाइक तुम जो भी फोटो क्लिक कर रहे हो तो उसको तुम फ्रेम कैसे कर रहे हो, लाइक कौन से एंगल से उसको देख रहे हो, तुम कौन सी चीज को ज्यादा दिखाना चाहते हो, वो जो सब आता है वो सब कॉम्पोजिशन में जाता है. तो कॉम्पोजिशन के कुछ रूल्स है, वो मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद में है एक्सपोजर. तो एक्सपोजर मतलब क्या है कि तुम्हारे फोटो में जो लाइट है उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर. तो लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फोटोग्राफी. तो लाइट के बारे में भी मैं तुमसे बात करूंगा इसके बारे में. तो उसके बाद में हो गया लेंस. तो व्हेन इट कम्स टू डिजिटल फोटोग्राफी, लेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है. ठीक है, फोन फोटोग्राफी में तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहता है कि लेंस कौन सी यूज करनी है कौन सी नहीं. जो लेंस तुम्हारे पास है वो तुम्हें यूज करनी पड़ती है फोन में. तुम डिजिटल कैमराज अगर देखते हो तो डिजिटल कैमराज में क्या होता है कि डिजिटल कैमराज में बहुत ज्यादा लेंसेस है, उसी के बारे में भी मैं तुमसे बात करूंगा. और आखिरी वाला है वो लाइट. लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आखिरी में. तो लेट्स स्टार्ट दिस विद कॉम्पोजिशन. तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि फोटोग्राफी के थियरी में कॉम्पोजिशन के कई सारे रूल्स है. तो उसको लाइक मैंने एक करके कुछ ये 6 रूल्स बनाया है, लाइक फिल द फ्रेम, understand the rule of thirds, leading lines, patterns oblique break the patterns, then symmetry, and then there is a perspective. Okay, so composition. अब तुम लोग बोलोगे कि कोई रूल वगैरह फॉलो करना जरूरी है क्या? क्या जब तुम फोटोग्राफी करते हो तो ये सारे रूल्स करने जरूरी है क्या? तो कभी कभी क्या होता है कि तुम अभी ये जो रूल्स है एक लाइक इसके पीछे एक स्टडी है जिसके बाद में ये कुछ बनाया है, या फिर जो व्यूअर्स पर्सपेक्टिव रहता है उसके हिसाब से ये जो रूल्स जो है वो बनाए गए हैं. ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि ये क्यों अच्छा लगता है. तो तुम जब नॉर्मल फोटोग्राफ लेते हो तो लेट्स कम टू द फर्स्ट रूल. आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन. फिल द फ्रेम. तो फिल द फ्रेम में क्या होता है कि जब तुम कोई फोटोग्राफ लेते हो, लेट्स सपोज दिस इज द पोर्ट्रेट इमेज. ओके, ये एक कोई हम पोर्ट्रेट ले रहे हैं. तो पोर्ट्रेट में क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग रहता है, या फिर इट्स अनवांटेड, वी कैन से अनवांटेड. जो बैकग्राउंड हमें चाहिए नहीं रहता है, जो सब्जेक्ट जो अपना, अभी सपोज ये जो सब्जेक्ट है और इसका जो बैकग्राउंड है, सपोज हमें सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है ना कि बैकग्राउंड पे. तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्टिंग है तो बैकग्राउंड को तो हटा नहीं सकते अपन स्ट्रीट फोटोग्राफी में. तो हम क्या करते हैं कि जो फ्रेम है वो सब्जेक्ट से ही फील करते हैं. सब्जेक्ट मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा फेस दिख रहा है, ये जो पोर्ट्रेट का जो फेस दिख रहा है, ये जो पोर्ट्रेट का जो फेस दिख रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, इन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी. ठीक है, तो अभी तुम इधर देख सकते हो कि जो पूरा जो फ्रेम है, जस्ट अ मिनट.
जो पूरा जो फ्रेम है तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो सब्जेक्ट कवर कर रहा है। मैक्सिमम मतलब यू कैन से ऑलमोस्ट 100% पार्ट। यहाँ पे देख सकते हो जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, लाइक सपोज दिस इज द सब्जेक्ट, ओके, ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो पूरा ऑलमोस्ट 100% पार्ट तुम्हारा जो है वो कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं तुम फिल द फ्रेम। ये हो गया पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में। अभी तुम ये फोटो देख रहे हो, ये वाला नीचे वाला, तो नीचे वाला फोटो में क्या है कि ये एक स्ट्रीट फोटोग्राफी करने गया था मैं, अलंदी घाट्स वाला है। तो उधर क्या था कि लाइक द पीपल वर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल एंड आई जस्ट वेंट ओवर देयर, और ये लोग कुछ खेल रहे थे। तो लाइक आई वांटेड टू कैप्चर दीज टू पीपल, ओके, आई जस्ट वांटेड टू कैप्चर दीज टू पीपल। सो मैंने क्या किया कि मैं जस्ट उनके पीछे खड़ा रहा और उनको कैप्चर करने का ट्राई किया। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने उनके ऊपर फोकस किया तो पीछे का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग था। तो हम क्या करेंगे इसके बाद में, लाइक पीछे का जो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, उनको तो हटा नहीं सकते हम लोग। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो लेंस है उसको, मेरे पास एक किट लेंस था, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, उसको वो वाइड था। तो मेरे फ्रेम में मैंने पूरा ये जो लोग दिख रहे बाकी वाले उनको भी इंक्लूड किया। क्यों, मैंने ये फ्रेम भर दिया, लाइक आई जस्ट फिल्ड दिस फ्रेम with these people, okay, and what is my subject? My subject is this, and I just filled this frame with these people. Then let's come to the, just a second, I'm having some questions over here. I'll explain it one by one. Okay, let's go to the, so you have understood this first rule, fill the frame. Then there comes the second rule. Just a minute. Okay. अंडरस्टैंड द रूल ऑफ थर्ड्स। तो रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, तो तुम्हारा जो भी इमेज, ये तुम लाइक तुम अगर फोटोग्राफी के फील्ड में हो पहले से, तो कुछ पहले से थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत ज्यादा तुमको बताई जाने वाली चीज है कि रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करो, रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करो। तो रूल ऑफ थर्ड्स में होता क्या है, तो तुम्हारा जो इमेज है, लेट्स सपोज दिस इज योर इमेज, ओके, it's in 1:1 square ratio, or this is your image which is in 3:4 ratio. तो बेसिकली होता क्या है, तुम्हारा जो इमेज रहता है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इधर मैं ना ये 9 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अभी तुम बोलोगे कि ये 9 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है। कि यहाँ पे देखो तुम लोग, ये जो तुम्हें फर्स्ट लाइन, this one and this one, so here are 4 lines and these 4 are the intersection points of your grid lines. So basically ये जो 9 पार्ट्स है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रिड। लाइक जब तुम फोन पे, तुम्हें पता होगा कि फोन पे जो ग्रिड लाइन रहती है वो वही रहती है कि तुम्हारी इमेज को 9 पार्ट में। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि ये 4 पॉइंट, ठीक है। तो अभी देखो ये जो ऊपर वाला जो इमेज है उसको मैं बोलूंगा कि द इमेज इज वेल कंपोज। तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि ये जो इमेज है, ठीक है, लेट्स डिवाइड दिस इन 3 पार्ट्स। ये जो इमेज है, ठीक है, तो ये इमेज में हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया ये इमेज को, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 7 8 9, ठीक है। तो ये पार्ट में ये जो सब्जेक्ट है वो किधर आया है, ये एक लाइन, 2 लाइन और इसका इंटरसेक्शन। तो ये फोटो, ये सब्जेक्ट जो आया है वो बराबर इंटरसेक्शन में है, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, दिस इमेज इज वेल कंपोज, ठीक है। तो अभी ये क्यों होता है कि इसको मतलब रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो क्यों करना है, तो फोटोग्राफी थ्योरी अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा गया है कि
ये जो अभी फोटोग्राफ कैमरा मतलब क्या है कि इट इज अ रेप्लिका ऑफ ह्यूमन आई, यू कैन से लाइक इट इज ऑलमोस्ट एन रेप्लिका ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई जो चीजें नोटिस करता है वो ऐसे नोटिस करता है। तो ये जो कभी कभी तुम कोई सीन देख रहे हो तो उसको अगर तुमने एज अ 3x3 के फॉर्म में अगर डिवाइड किया तो ये चार जो पॉइंट्स है वो ज्यादा फोकस्ड रहता है। तो इसीलिए उसको रूल ऑफ थर्ड्स के लिए उसको बोलते हैं कि रूल ऑफ थर्ड्स वाले पॉइंट, लाइक जो चार इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसको बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड्स वाले पॉइंट। हाँ, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट इधर नहीं है इधर नहीं है, ये चार पॉइंट्स पे नहीं है, तो तुम्हारा सब्जेक्ट कम से कम ये लाइन में होना चाहिए। ये 1 2 3 और 4, ये चारों लाइन में से एक लाइन पे तुम्हारा सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी हम आते हैं सेकेंड इमेज पे। तो सेकेंड इमेज में क्या है, सेकेंड इमेज कौन सा है, पोर्ट्रेट है। तो तुम जब भी पोर्ट्रेट क्लिक करते हो तो पोर्ट्रेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है ह्यूमन आई। लाइक अगर तुम ह्यूमन पोर्ट्रेट खींच रहे हो तो ह्यूमन आई, एनिमल खींच रहे हो तो एनिमल आई, लेकिन आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू कम टू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है, फिर भी सी, ठीक है। तो जब तुम पोस्ट प्रोसेसिंग वाला सेशन अटेंड करोगे तो मैं तुमको ये जो इमेजेस है वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड लाइन जो है वो ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो उसका जो आई है, जो ह्यूमन एलिमेंट है उसका जो आई है वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे आया है इसका आई, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि द पोर्ट्रेट इज वेल कंपोज, ठीक है। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो भी तुम्हारा पहले तुम ये इमेज जब देख रहे हो ये नीचे वाली, तो सबसे पहले तुम नोटिस कर रहे हो कि जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले तुम क्या नोटिस कर रहे हो, आई नोटिस कर रहे हो। लाइक मेनी ऑफ यू विल एग्री, मेनी ऑफ यू विल डिसएग्री, बट यस व्हेन you follow rule of thirds, your eye will focus on that points only. Okay, so what I'll do, I'll just take the next image, ठीक है। तो ये जो फोटो है अभी तुमको मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो ये जो फोटो है वो तुम लोग बोलोगे किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी, लेकिन लाइक फॉर मी इट्स अ नॉर्मल फोटोग्राफ। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। थोड़ा सा गलत हो गया, मैं एडिटिंग के टाइम पे ये फोटो पे एक्सप्लेन करूंगा, तो जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। तुम देख सकते हो कि मैंने इसको 3x3 के पार्ट में डिवाइड किया, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड दिस इज योर सेकंड सब्जेक्ट। तो अभी रूल ऑफ थर्ड जैसे बताया तुमको, तो रूल ऑफ थर्ड जैसे बताया तो उसका कोई भी रूल ये सब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा है। लाइक ये इमेज में कोई भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। लाइक दिस इज योर 1 पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड पॉइंट एंड दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। तो तुम्हारा एक भी यार दोनों में से एक भी सब्जेक्ट तुम्हारा ये 4 पॉइंट्स पे नहीं है। तो मैंने क्या किया कि ये फोटो को मैंने क्रॉप किया। ओके, तो मैं बताऊंगा, ये फोटो को मैंने क्रॉप किया और मैंने इसको ऐसे क्रॉप किया, ठीक है। तो इसको क्रॉप किया, तो अभी इसको क्रॉप करके मैंने इसको ऐसे क्रॉप किया कि ये थर्ड्स रूल फॉलो करे। सी, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है ये इधर है, ये सब्जेक्ट है ये इधर है, ठीक है। तो तुम जब दोनों इमेजेस एक बार चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइक कौन सा फोटो देखने में अच्छा लगता है। यू कैन सी दिस, just check it out. There are a lot of questions coming from audience side. I'll just finish composition part and then I'll take your doubts. Then there is rule third. Which is leading lines. So leading line, just a minute, there are so many questions coming up. Okay, so leading lines, ये like composition में मेरे को सबसे ज्यादा पसंद जो पार्ट है वो है leading lines.
तो लीडिंग लाइंस तुम्हें देख के पता चला होगा कि इसको लीडिंग लाइंस क्यों बोलते हैं। तो अभी ठीक है, यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट, सपोज दिस इज योर सब्जेक्ट, ओके, तो लीडिंग लाइंस क्यों बोलना है कि ये जो तुम्हारा लाइन है लाइक दिस इज लीडिंग यू टुवर्ड्स this subject. This leading line is leading you towards this subject. This leading line is leading you towards this, and then there is a fourth line which is like this. तो तुम्हें पता चला होगा कि इसको लीडिंग लाइंस क्यों बोलते हैं, कि तुम अगर देख रहे हो तो ये जो चारों पॉइंट है यहाँ पे, तो वो चारों लाइन जो है वो एक सब्जेक्ट की तरफ तुमको लीड कर रहे हैं। लाइक जो तुम्हारा व्यूअर का जो एक बार एक पर्सपेक्टिव रहता है उसके बारे में अगर सोचेंगे तो ये जो चारों लाइंस है वो तुमको एक सब्जेक्ट की तरफ लीड कर रहे हैं। तो और एक क्या है इसमें अच्छी बात कि इधर तुम देख सकते हो ये जो हाथ में पकड़ा है उसको बोलते हैं लेंस बॉल। तो ये जो मैंने लेंस बॉल पकड़ा है तो ये भी तुम देख सकते हो इधर 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 और इधर, ऐसे तुम्हें लेट सपोज दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस डॉट इज अ सब्जेक्ट, तो ये भी तुम्हें एक सब्जेक्ट की तरफ लीड कर रहा है। ठीक है, तो there is one question, I'll just store it up in few seconds, about Fibonacci composition and rule of thirds, are they same? So Raghu is going to take all the fifth rule, the Fibonacci composition, the golden ratio, and the rule of thirds again in the second session, which is tomorrow. So he will cover those topics. I'm just briefing it out on the composition and the fundamentals of photography. If you have any doubt, you can ask it after the session, after I finish my presentation. Okay. So let's talk about this image. So यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो लाइन है, this one line, this is second line, just a minute. Okay, I'll just change the color of my pen. See this line and this line. Okay, so you see, I'll just draw it again. Okay, so these are the four lines which are leading you towards this subject. So I know the subject is not clear over here, but let's suppose there is some model or there is some human element which is properly exposed. So how good that image will look like. तो मैं वापस से इरेज कर रहा हूँ, तुम देख सकते हो कि ये जो चार लाइंस है वो कितने अच्छे से एक सब्जेक्ट की तरफ तुमको लीड कर रहे हैं। तो जब कॉम्पोजिशन की बात आती है तो लीडिंग लाइंस वन ऑफ द बेस्ट है, तुम फॉलो मतलब कर सकते हो। उसके बाद में फोर्थ वाला जो रूल है वो है पैटर्न्स ऑब्लिक ब्रेक द पैटर्न्स। तो पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। तो पैटर्न्स क्या होता है कि देखो जब तुम फोटोग्राफी में आते हो तो जो तुम फ्रेमिंग या करते हो या फिर कोई जब कॉम्पोजिशन की बात आती है तो पैटर्न्स लाइक वन ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग, लाइक पैटर्न्स जिसको समझा ना लाइक वो बहुत अच्छे से कर पाएगा कॉम्पोजिशन। तो पैटर्न्स में क्या होता है कि तुम यहाँ पे फर्स्ट इमेज में देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग पैटर्न है। ये एक देयर इज वन पैटर्न लाइक येलो लाइंस एंड द ब्लैक रोड। तो मैंने क्या किया कि ये जो पैटर्न दिख रहे हैं इतने सारे, तो पैटर्न के बीच में मैंने एक सब्जेक्ट ला दिया इधर, ये गणपति वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पैटर्न फॉलो भी किया और पैटर्न ब्रेक भी किया। लाइक एक जो बैकग्राउंड वाला जो पैटर्न है वो सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो जो बैकग्राउंड वाला पैटर्न है तो ये सिमिलर है और तुम्हारा जो सब्जेक्ट बीच में ला दिया तो पैटर्न तुम्हारा ब्रेक हुआ। लेकिन देखो पैटर्न ब्रेक हुआ बट यहाँ पे तुम सिमेट्री देख सकते हो। सी यहाँ पे भी इक्वली ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी इक्वली ब्रेक हुआ है। तो जब पैटर्न ब्रेकिंग की बात आती है तो तुम्हें ये सब फॉलो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे भी देखो जैसे तुम्हें लाइक प्रीवियस स्लाइड्स में लाइक आई थिंक रूल सेकंड में बताया कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि ये स्टेयर्स वाला पैटर्न देखो, यहाँ पे 4 स्टेयर्स 4 स्टेयर्स 4 स्टेयर्स 4 स्टेयर्स। तो ये स्टेयर्स वाला जो पैटर्न है तो ये एक पैटर्न हो रहा है और यहाँ पे एक ह्यूमन एलिमेंट है तो ये जो कि पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। तो पैटर्न ब्रेकिंग की जब बात आती है तब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि लेट्स सपोज दिस इमेज कंप्राइजेस ऑफ लाइक दिस।
ओके, तो तुम देख सकते हो इधर। तो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो ठीक है, रूल ऑफ थर्ड इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा है, बट इट इज क्लोजर टू दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, सो तुम्हें अगर पैटर्न और ब्रेक द पैटर्न अगर समझ गया होगा तो हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं। तो नेक्स्ट रूल इज, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस। चलो, सिमेट्री। तो कॉम्पोजिशन में और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सिमेट्री। तुम यहाँ पे देख सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट दिस इमेज फर्स्ट। तो यहाँ पे तुम्हें सिमेट्री में क्या दिखा कि लाइक यू कैन डिवाइड दिस इमेज इन these parts. Okay, so you can look at this frame, you can look at this frame. Let's divide this image into two frames and put one subject in the middle of the frame. ठीक है, तो तुम्हारा जो सिमेट्री है वो तुम्हें फ्रेम में सिमेट्री दिख रहा है, और जो सिमेट्री ब्रेक कर रहा है तो वो सब्जेक्ट ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में आते हैं ये इमेज में। ठीक है, तो ये इमेज में और एक बात क्या है, यहाँ पे सिमेट्री भी फॉलो हो रही है। सॉरी, आई एम रियली बैड एट ड्राइंग। ओके, तो यहाँ पे सिमेट्री भी फॉलो हो रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी है, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है फ्रेम को। तो यहाँ पे तुम क्या क्या चीजें नोटिस कर रहे हो, लाइक ये सब्जेक्ट जो है, बाय द वे दिस इज नॉट एडिटेड, इट्स स्लो शटर। आई विल टेल अबाउट दिस, आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। सो यहाँ पे सिमेट्री क्या है, लाइक तुम जब इमेज को ऐसे डिवाइड करोगे या फिर ऐसे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है। ठीक है, और उसके बाद में इधर ऐसे अगर बीच में से डिवाइड करोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट जो है वो सिमिलर है। तो सिमेट्री फॉलो भी हुआ, सिमेट्री ब्रेक भी किया। तो जब तुम कॉम्पोजिशन में सिमेट्री की बात आती है तो सिमेट्री फॉलो भी करना है, सिमेट्री ब्रेक भी करना है। तो तुम्हें आइडिया क्लियर हुआ रहेगा कि सिमेट्री फॉलो मतलब क्या है, कि तुम्हें ऐसा फ्रेम ढूंढना है जहाँ पे सिमेट्री है, और सिमेट्री ब्रेक करना है मतलब क्या करना है, तुम्हें सब्जेक्ट को तुम्हें उस जगह रखना है जहां से सिमेट्री अच्छे से ब्रेक हो सके। तो एक सेकेंड, हम लास्ट स्लाइड पे आते हैं, लाइक जो प्रीवियस स्लाइड था। ओके, आई जस्ट कम बैक टू दिस। ओके, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे पैटर्न भी है, यहाँ पे सिमेट्री भी है। तो सिमेट्री ब्रेक करने के लिए मैंने इधर सब्जेक्ट जो है ये बीच में लगा दिया इधर। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा जो सिमेट्री और पैटर्न है वो क्वाइट सिमिलर है। तो अभी हम आते हैं पर्सपेक्टिव पे। तो कॉम्पोजिशन में तुम जब भी फोटो खींचते हो तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, लाइक तुम जो सब्जेक्ट दिख रहे, तुमको जो सब्जेक्ट दिख रहा है उसको तुम कौन सा एंगल से देख रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये 3 इमेजेस के बारे में ना मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इमेजेस मैंने कैसे खींची है। लाइक आई विल जस्ट टेल यू अ ब्रीफ स्टोरी अबाउट हाउ आई हैव कैप्चर्ड दिस फोटोग्राफ्स। So let's talk about this photograph. So like मैं every week पुणे में फोटो के लिए जाता हूँ। तो वहाँ पे क्या रहता है कि there is one, you all of you must be knowing about महात्मा फुले मंडई, those who are from Pune. So मंडई में ये जो आदमी है वो बैठा रहता है, लाइक बहुत सारे लोगों ने इसका फोटोज वगैरह खींचा है, लाइक बहुत सारे लोग इसका स्टोरी खींचते हैं या फिर इसके फेस पे जो इमोशन है वो खींचते हैं। तो मैंने मेरा था वो नया खरीदा था, तो मैंने सोचा कि इसमें वाइड एंगल है तो वाइड एंगल हम कुछ ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा कि नॉर्मल वाइड एंगल से अच्छा है कि लेट्स ट्राई दिस आउट फ्रॉम द अपर साइड। तो मैं क्या किया कि मैं उसके सामने जाके खड़ा हुआ, उनको बताया कि अंकल तुम जैसे पेपर पढ़ रहे हो तुम वैसे पढ़ते रहो, बस मैं तुम्हारा ऊपर से एक फोटो लूंगा। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, वो उधर के लोग जो है वो फोटोग्राफी फ्रेंडली है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा फोटोग्राफर्स आते रहते हैं। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, तो मैं जस्ट गया और मैंने बस फोन ऊपर से ऐसा रख दिया और मुझे ये फोटो मिला। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत क्रॉपिंग किया है बट मुझे ये फोटो मिला। अभी क्या होता है कि तुम लोग बोलोगे कि ये जो फोटो है ये रूल ऑफ थर्ड फॉलो नहीं करेगा, लाइक ये जो है ये तुमने ऐसा सेंटर फ्रेम में रख दिया। तब कभी कभी क्या होता है कि रूल ऑफ थर्ड जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में फॉलो करना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अगर पर्सपेक्टिव कुछ अलग है तो इट्स ओके टू नॉट टू फॉलो रूल ऑफ थर्ड्स या फिर कोई कॉम्पोजिशन रूल। अगर पर्सपेक्टिव कुछ अलग है तो ठीक है, लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने जस्ट डॉगी के सामने फोन रखा, वाइड एंगल शॉट है, फोन वाला शॉट है।
तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो इतना ज्यादा फॉलो नहीं होता है, गेस वो 4 पॉइंट पे आता है। इसका आई जो है थोड़ा लाइक इट्स लिटिल बिट क्लोजर टू दिस, बट दिस इज द डोमिनेटिंग आई, बट इट इज नॉट अंडर एनी ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो उसके बाद में अपन ये बारे में बात करते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, लाइक आलंदी घाट में ऐसे बच्चे तुमने देखे रहेंगे कि ये बच्चे पानी में खेलते रहते हैं। तो मैंने जस्ट बोला कि तुम सामने से आओ, तुम जैसे कूद रहे हो वैसे कूदो। तो मैंने जस्ट मेरा जो कैमरा है वो एकदम ज्यादा ऊपर रखा, लाइक 180 डिग्री टू देम। तो मैंने क्या किया, जस्ट वैसा रखा और मेरा कैमरा अराउंड 1 सेकेंड में 6 to 7 फोटोग्राफ्स खींचता है। तो मैंने जस्ट ये फोटोज कंटिन्यू शॉट्स में लिया और इसमें से एक मिला है। तो फोटोग्राफी में क्या होता है कि तुम अलग अलग एंगल से जब ट्राई करते हो तो इट्स ओके टू नॉट टू फॉलो अदर कॉम्पोजिशन रूल्स, लाइक if you follow those rules also, then it will be one of the good pictures from your side. तो ये 6 रूल्स थे। तो आई थिंक पहले हमें ये 6 रूल्स के बारे में बात करना होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं अभी। लेट मी चेक द क्वेश्चंस। In symmetry, is it important to focus on the rule of thirds? वेद ने पूछा है। Is my audio clear? Your audio is clear. Okay, fine. So in symmetry, is it important to focus on the rule of thirds? देखो मैंने जैसे इधर बताया है, let me count. यहाँ पे देखो मैंने आके तुम्हें ये पॉइंट भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे भी एक सिमेट्री है, यहाँ पे भी सिमेट्री है, लेकिन ये बंदे को मैंने रूल ऑफ थर्ड में बिठाने का ट्राई किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिमेट्री भी फॉलो किया, रूल ऑफ थर्ड भी फॉलो किया है, ठीक है। और इसके बाद में तुम देखो इधर, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया है मैंने कि सिमेट्री को डिवाइड किया है इक्वली। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये लाइन क्लियर नहीं है, जब तुम इधर स्ट्रेट लाइन मारोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि सिमेट्री को मैंने इक्वली डिवाइड किया है। तो ये रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, लेकिन इमेज अच्छी लग रही है ना, तो अच्छी लग रही है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर बार रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करना जरूरी है। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको समझ आएगा। बट फॉर बिगिनर्स इट इज एडवाइज टू फॉलो रूल ऑफ थर्ड्स, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन रूल ऑफ थर्ड्स अगर तुम्हारा फॉलो हो रहा है अच्छे से तो बहुत बड़ी बात है। और सिमेट्री में मैं तो सोचता हूँ कि सिमेट्री ब्रेक करने के लिए मैं तो लाइक मैं ये अप्रोच से जाऊंगा कि मुझे सिमेट्री जो ब्रेक करनी है वो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करनी है। या वहां पे अगर मुझे रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करना अच्छा लगा तो मैं रूल ऑफ थर्ड फॉलो करूंगा, अगर मुझे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना अच्छा लगा तो मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। Is that doubt cleared? There's another doubt. For leading lines, what is the ideal size of the object? That's a good question actually. Let me come back to it. Okay, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट है वो इतना ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है। या फिर यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट होना इज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। या तुम बोल सकते हो कि ये वेल कॉम्पोज्ड है, लेकिन इसको बोल सकते हैं कि तुम इट्स नॉट अ गुड इमेज। कॉम्पोजिशन अच्छा है लेकिन फोटोग्राफ अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ये इसकी बात आए तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो आदमी है इसका जो एक्सपोजर है वो ठीक है, वो थोड़ा सा और पास में होता तो वो ज्यादा इमेज अट्रैक्टिव होती। तुमको ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की साइज इतनी है तो इट्स ओके, अगर ऑब्जेक्ट की साइज इतनी है तो इट्स नॉट ओके, क्योंकि तुम्हें ये जो चारों लाइंस है वो चारों लाइंस तुमको इधर एक पॉइंट पे लीड कर रहे हैं। तो तुम जितना ज्यादा लाइन को चांस दोगे जाने का आगे और तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो है वो नोटिसेबल है तो उतना साइज काफी है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का तुम्हारे। लेट मी टेक द लास्ट क्वेश्चन। Okay, take the strangers one.
which one? Approaching strangers. Okay, approaching strangers wala. Okay, so how to approach strangers? Okay, so I will discuss this later on, like after finishing our presentation, because अभी तो हम composition और fundamentals पे focus कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक बार मुझे presentation खत्म करने दो, सारे points clear करने दो, फिर हम बात करेंगे. तो composition के बारे में और कुछ doubts होंगे तो session के बाद में पूछ सकते हो. एक्सपोजर ट्रायंगल, तो तुम लोगों ने अगर ट्राई किया होगा कभी फोटोग्राफी सीखना है या फिर कोई एक दो ट्यूटोरियल्स भी तुमने किए होंगे तो तुमको पता चला होगा कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है. तो लाइक तुमने वर्ड तो कम से कम सुना होगा कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है. तो एक्सपोजर ट्रायंगल जो है वो इट कंप्राइजेस ऑफ आईएसओ, अपर्चर एंड शटर स्पीड. तो ये तुम बोल सकते हो कि ये तीन क्या है. तो मैंने जैसे बोला कि सेल में जो लास्ट पॉइंट है वो है लाइट. तो लाइट जो है वो फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड है वो तुम बोल सकते हो कि इट इज अ लाइक फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट. तुमको जो भी तुम्हारे फोटो में एक्सपोजर लेवल या लाइट तुमको जो भी अरेंज करना है उसके हिसाब से हम ये तीनों जो है उसका सेटिंग करेंगे. तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो कि आईएसओ, लेट मी जस्ट, तो ओके, तो आईएसओ मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द इमेज सेंसर. तो इससे मुझे नहीं लगता कुछ क्लियर हुआ रहेगा तुमको, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो आईएसओ बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे कैमरा, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल कैमराज ओनली. मोबाइल फोटोग्राफी वाला जो है वो मैक्सिमम पार्ट कल कवर करेगा राघवेंद्र, और मैं थोड़ा बहुत आईएसओ के बारे में अभी बताऊंगा. तो आईएसओ क्या रहता है कि तुमने अगर फोन में भी देखा रहेगा, अभी जो नए फोन से उसमें ना प्रो मोड रहता है या एक्सपर्ट मोड रहता है. सॉरी, एक्सपर्ट मोड या प्रो मोड रहता है. तो प्रो मोड में तुम लोग आईएसओ जो है वो एडजस्ट कर सकते हो. अगर तुमने ट्राई किया रहेगा प्रो मोड यूज करने का या एक्सपर्ट मोड यूज करने का, तो तुम्हें पता चला होगा कि आईएसओ बढ़ाने से क्या होता है, आईएसओ कम करने से क्या होता है. तो मैं क्या बोलूंगा कि आईएसओ, लेट्स सपोज योर कैमरा हैज मिनिमम ऑफ 100 ISO and maximum of 25,600. That's the maximum number. Like my camera is having 25,600. तो अभी तुम नेक्स्ट देख सकते हो. तो आईएसओ बेसिकली क्या होता है कि सेंसिटिविटी ऑफ द इमेज सेंसर, मतलब तुम्हारा जो लाइट आ रहा है उसकी लाइक तुम्हारे इमेज सेंसर की वो लाइट लेने की सेंसिटिविटी क्या होती है. तुम्हारे कैमरा में जो सेंसर रहता है वो ज्यादा कितना ज्यादा सेंसिटिव है लाइट को. ठीक है, तो वो डिसाइड करता है आईएसओ. तो आईएसओ 100 मतलब क्या है, तुम्हारा जो सेंसर का जो सेंसिटिविटी है वो बहुत कम है. हाँ, जो तुम्हारा लाइट सेंस करने का जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा कम है इमेज सेंसर का. जैसे जैसे तुम आईएसओ बढ़ाते जाते हो, सॉरी, जैसे जैसे तुम आईएसओ बढ़ाते जाते हो वैसा वैसा तुम्हारा जो इमेज है वो वेल एक्सपोज हो जाएगा. वेल एक्सपोज मतलब आई विल जस्ट टेक माय वर्ड बैक, वेल एक्सपोज, तुम्हारा जो इमेज है वो एक्सपोज्ड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक सीन है, अभी तुम फर्स्ट इमेज को ऑब्जर्व करो कि तुम गए हो, तुमने अभी अपर्चर और शटर स्पीड के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं है तो वो बात मैं क्लियर कर दूंगा. लेकिन सपोज तुम्हारा जो शटर स्पीड है और अपर्चर है तो वो तुमको जो आइडियली चाहिए उतना है. ठीक है, तुम्हें उनके साथ कुछ चेंजेस नहीं करना है. तो तुम्हें जो चेंज करना है वो है आईएसओ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इधर आईएसओ 100 रखा है और अपर्चर और शटर स्पीड जो है वो आइडियल है. उसके बाद में तुमने क्या किया कि ये इमेज ना बहुत ज्यादा डार्क आ रही थी. ठीक है, तो मैं डार्क और सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डार्क इमेज है और जो ब्राइट इमेज है, तो जो तुम्हारी इमेज है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है, लाइक तुमको जो डिजायर्ड नहीं रहती उससे भी ज्यादा ब्राइट होती है, तो उसको हम बोलेंगे कि ओवर एक्सपोज्ड. और तुम्हारा जो इमेज है वो बहुत ही ज्यादा डार्क होता है तो हम उसको बोलेंगे अंडर एक्सपोज्ड. तो आईएसओ 100 पे तुमको ये दिख रहा होगा कि ये इमेज जो है वो अंडर एक्सपोज्ड है. तो तुमने क्या किया फिर, तुम्हारा अपर्चर और जो शटर स्पीड है वो आइडियल है, तो तुमने क्या किया, तुमने आईएसओ को 200 बनाया.
उसके बाद में भी अच्छी नहीं आई इमेज, 400 बनाया, फिर 800 बनाया, फिर तुम गए 1600 पे। तो 1600 पे तुमको जो दिख रहा है वो इमेज क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि भाई रात को जब तुम शाम वगैरह होती है, जब लाइट कम करता है, तो तुम ISO 51,000 पे भी लेके जा सकते हो। पॉइंट तो वैलिड है वैसे। तुम ISO अगर 51,000 पे लेके जा रहे हो तो तुम्हारा जो तुम्हारे जो सेंसर का लाइट सेंस करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, तुम जब ISO जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना, तुम्हारे इमेजेस में ग्रेन आना चालू होता है, तुम्हारा इमेज जो है वो नॉइजी बनता है। तो ग्रेन्स और नॉइजी बनता है, वो मैं तुमको आज ग्रुप पे एक मैं फोटो सेंड करूंगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है नॉइजी मतलब। बहुत जनों को पता रहेगा कि नॉइजी इमेज मतलब क्या होता है। तो जो ISO है वो like I follow this rule. I will every time when I capture the photo, I will just keep my ISO at 800 at max. बहुत ही ज्यादा जरूरत है, फोटो लेना ही है तो मैं 1000 तक जाता हूँ, क्योंकि 1000 के बाद में जो फोटोज आते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रेनी और नॉइजी होते हैं, जिसका कुछ भी मतलब नहीं होता। लाइक वो फोटो का क्वालिटी जो है वो बहुत खराब हो जाता है। और मिनिमम जो है वो 100 ही रहता है, वो हर डिजिटल कैमरा में 100 ही रहेगा, ठीक है। तो I don't know, just a minute. Okay, so I was using that pen. Let's go to the second slide. तो ISO तुम में क्लियर हुआ रहेगा कि ISO एग्जैक्टली क्या रहता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ISO का जो मीटर दिया है वो 100 से लेके 3200 तक दिया है। उन्होंने लिखा रहेगा कि यहाँ पे डे लाइट और यहाँ पे नाइट। तो डे लाइट में ISO जो है वो 100 रखो, क्योंकि तुम्हारा जो नेचुरल लाइट रहता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो तुम्हें ISO अगर तुम और ज्यादा बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो एक्सपोजर है, जो इमेज का जो एक्सपोजर है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। जैसे तुमको पता है कि इमेज जब ज्यादा ब्राइट होती है तो उसको बोलते हैं हम ओवर एक्सपोज, इमेज जब डार्क होती है तो उसको बोलते हैं हम अंडर एक्सपोज। तो तुम अगर 800 ISO अगर तुम डे लाइट में रख रहे हो तो तुम्हारा जो फोटो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे ओवर एक्सपोज फोटो। तो इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ठीक है। तो उसके बाद में आता है अपर्चर। सी ये जो तीनों भी पॉइंट्स है, ISO, शटर स्पीड और अपर्चर, वो तीनों भी पॉइंट्स लाइट्स के बारे में ही है। जो लाइट इनटेक कैमरा में होता है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में आता है अपर्चर, ठीक है। तो ISO तुमको क्लियर हो गया है। कुछ क्वेश्चंस है ISO के बारे में, लेट देम कम। ISO के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो गए तो बताओ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अंकित, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्चुअल ISO व्हेन वी क्लिक पिक्चर इन फोन? Okay. So there's one question from the audience. What is the actual ISO when we click on our phone? तो क्या होता है कि फोन में तुमने देखा रहेगा कि उधर प्रो मोड एक रहता है और एक जो रहता है वो नॉर्मल मोड रहता है। तो फोटोग्राफी जब करते हो तब जब तुम नॉर्मल मोड यूज करते हो, लाइक तुमने जैसे कैमरा ऑन किया और तुमने फोटो खींचा, तो वो जो एडजस्टमेंट रहता है वो कैमरा का सेंसर खुद ब खुद करता है। हमें क्या करना आता है, हमें बस कहाँ पे फोकस लॉक करना है या फिर उसका ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा करना है, उतना ही आता है नॉर्मल फोटोग्राफी में। लाइक तुम मोबाइल कैमरा ऑन कर रहे हो और फोटो ले रहे हो, तो उसमें जो ISO, शटर स्पीड और अपर्चर होता है वो मोबाइल इंटरनली करता है एडजस्ट, लाइक जो आइडियल रहता है वो करता है और वो तुमको आउटपुट देता है, ठीक है। अगर तुम नाइट मोड में क्लिक कर रहे हो फोटो तो तुम्हारा ISO जंप करता है 1600 को, ठीक है। और तुम देखना कभी एक्सपर्ट मोड यूज करके, आई गेस वन प्लस जिनके पास है या फिर रियलमी है,
वो लोगों के पास में ना ये सब एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि रेडमी वाले जो फोन है उसमें शटर स्पीड वाला एडजस्टमेंट नहीं है या फिर अपर्चर वाला एडजस्टमेंट नहीं है, उसमें बस आईएसओ वाला एडजस्टमेंट है। तो तुम एक बार वो देख लेना। फोन फोटोग्राफी के बारे में रघु बता ही देगा कल। उसका जो कल का जो सेशन है वो है फोन फोटोग्राफी के बारे में। तुमको ज्यादा इंफॉर्मेशन जो उसके बारे में है वो कल के सेशन में मिल जाएगी। और कुछ एक Is there any question है, doubt, what should Raghu? be the ISO? What should be the ISO while clicking the lightning and thunders at night? ओके ठीक है, ये जो पार्ट है ना ये मैं शटर स्पीड जब एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद में क्लियर करूंगा, क्योंकि जब तुम लाइटनिंग के फोटोज लेते हो तो तुम्हें अपर्चर पे भी ध्यान देना है और शटर स्पीड पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो पूरा एक्सपोजर ट्रायंगल, लेट मी एक्सप्लेन पूरा का पूरा एक्सपोजर ट्रायंगल एंड देन आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अपर्चर थिंग। सो अपर्चर क्या रहता है, एक बार ये तुम चारों पॉइंट्स पढ़ लो कि बेसिकली अपर्चर इज एन ओपनिंग ऑफ अ लेंस व्हिच इज सेंसिटिव टू द लाइट कमिंग अपॉन द सेंसर। तुमको जैसे बताया कि कैमरे के अंदर एक सेंसर रहता है, उसके ऊपर लाइट आता है। ठीक है, तो हम आईएसओ जैसे बढ़ाएंगे उससे ज्यादा लाइट आएगा, जैसा ऐसा हम कम कर देंगे वैसा कम लाइट आएगा। वो होगी सेंसिंग की बात। उसके बाद में आता है अपर्चर। तुम्हारा जो कैमरा का लेंस रहता है उसमें एक अपर्चर रिंग रहती है। तो अपर्चर रिंग क्या रहती है उसके बारे में बताऊंगा, एक सेकेंड। तो मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए एक वीडियो है। अपर्चर रिंग क्या होती है, ये तुम्हारा हो गया पूरा लेंस। ठीक है, और ये जो तुम्हें दिख रही है वो दिख रही है तुमको अपर्चर रिंग। ठीक है, तो तुम इसको बस ऑब्जर्व करना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें, लाइक एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, आई गेस सबको वीडियो दिख रहा है, तो आई विल कम बैक टू माय प्रेजेंटेशन। everything. Am I audible? Continue. Shobit? Continue. Okay, so let's start with this aperture thing. तो तुमने जो वीडियो देखा ना वहां पे जो रिंग था, सी तुमने कुछ ऐसा देखा होगा। ये जो रिंग है वो बंद हो रही है, चालू हो रही है। ठीक है, तो तुमने ये देखा होगा, तो इसका मतलब क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। तो क्या रहता है कि तुम्हारा जो कैमरा में जो सेंसर पे लाइट आता है उसको कितने क्वांटिटी में लेना है वो डिसाइड करता है अपर्चर। तो तुमको ये भी नहीं क्लियर हो तो मैं बताऊंगा। अभी सपोज तुम्हारा अपर्चर जो है वो सपोज 2 है। ठीक है, let's suppose you have see let's come go back to the last slide. I think basically aperture is an opening of a lens which is sensitive to the light coming upon the sensor. Aperture is always given by the factor f by x, where x is the f-stop number. Wider the aperture, better is the depth of field. अभी depth of field में भी बताऊंगा मैं क्या है। ठीक है, तो अभी अपर्चर पे आता है। तो अपर्चर जब तुम डिजिटल कैमरास देखते हो तो तुमको पता होगा कि एक्सपोजर ट्रायंगल वाला जो अपर्चर का पार्ट है उसमें अपर्चर के एफ स्टॉप्स रहते हैं, लाइक एफ अपॉन जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं हम अपर्चर। तो इट्स 2.0, 3.5, 5.6, f 8.0। तो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब क्या होता है कि तुमको पता होगा कि तुम्हें अगर तुम पोर्ट्रेट वगैरह खींचते हो तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि भाई तू मेरा फोटो खींच, पीछे वाला पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो ब्लर होता है उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। तो तुम्हारा जो पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो कितना ज्यादा ब्लर करना है वो डिसाइड करता है अपर्चर। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड किसमें ज्यादा होती है, जब तुम अपर्चर कम रखते हो तो तुम्हारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ज्यादा रहता है।
जब तुम अपर्चर ज्यादा रखते हो, लाइक यू आर गोइंग फ्रॉम 2 to 8, तुम्हारा डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो कम हो जाता है। तो मैं ये बताऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है। तो जस्ट मिनट, ओके। तो f2.0 मतलब क्या है कि तुम्हारा जो रिंग है वो वाइड ओपन है, और जो लाइट आ रहा है पूरा, वो अभी तुम देख रहे हो जो यहाँ पे जो ऑरेंजिश कलर है, तो तुम्हारा जो लाइट आ रहा है वो कैमरा में आ रहा है वो इतने ज्यादा, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, नॉट विजिबल टू एवरीवन। ओके, सो जो तुम्हारा जो लाइट अंदर आ रहा है वो इतने सारे पार्ट में से लाइट आ रहा है, तो जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है जिसके अंदर से लाइट आ रहा है। तो ये क्या करेगा, लाइक तुम अगर अपर्चर 2.0 रख रहे हो तो तुम्हारा जो फोटो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। क्यों? लेकिन क्योंकि तुम्हारा जो लाइट अंदर आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो तुम क्या करोगे, तुम अपर्चर जो है वो बढ़ाओगे, लाइक 3.5 करोगे, तो तुम्हारा जो ओपनिंग ऑफ अपर्चर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो लाइट अंदर आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, ठीक है। और फिर वापस तुमने कम किया तो तुम्हारा जो लाइट आ रहा है वो कम, ये बहुत कम हुआ, और फिर वापस से कम किया तो तुम्हारा जो लाइट है वो बहुत कम हुआ। और जो f22 वगैरह रहता है उसका ओपनिंग बस इतना ही रहता है। ये तो मैंने निकाला है, लाइक तुम देख सकते हो कि कैमराज में f22 तक पॉइंट रहता है। तो ठीक है, तो ये मतलब वैरी करने का क्या मतलब है तो मैं बताऊंगा। तो तुम बोलोगे कि f2.0 पे अगर तुम्हारा इमेज ज्यादा ब्राइट आ रहा है तो तुम f8 पे रखो और फोटो खींचो, तो तुम्हारा ये एक्सपोजर जो है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, तो तुमको जैसे बताया कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो जितना कम अपर्चर उतना ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब क्या है, जो तुम्हारा बैकग्राउंड ब्लर है वो तुमको अच्छा मिलेगा। अगर तुम f स्टॉप जो है वो 2.0 रख रहे हो तो तुम्हारा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और तुम अगर f8 रख रहे हो या 8 रख रहे हो तो तुम्हारा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत कम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो कि जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किया उसको यहाँ पे कवर अप किया है। फोटो इज लाइटर, बैकग्राउंड इज मोर ब्लर्ड, यूज्ड फॉर पोर्ट्रेट शूटिंग। फोटो इज डार्कर, क्लियरर बैकग्राउंड, यूज्ड फॉर शूटिंग लैंडस्केप्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको आइडिया क्लियर हुआ रहेगा कि ओपन अपर्चर मतलब f2 और क्लोज्ड अपर्चर f8 कब यूज करते हैं। लेट सपोज तुम्हारा एक ग्रुप फोटो है, तो ग्रुप फोटो ले रहे तो, और तुम्हारा जो फोकसिंग पॉइंट्स है वो कुछ 9 फोकसिंग पॉइंट्स, लाइक वो पॉइंट्स के बारे में सब ऋत्विक विल कवर दीज द टर्म्स इन डिजिटल कैमरास। तो फोटो लाइटर मतलब क्या है कि तुम्हारा जो लाइट है वो बहुत ज्यादा अंदर आ रहा है f2 पे, फिर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर है। हाँ, और पोर्ट्रेट शूटिंग में क्यों, क्योंकि पोर्ट्रेट शूटिंग में तुम्हारा जो फोकस रहता है, तुमको जैसे मैंने पहले बोला कि तुम्हारा जो फोकस रहता है वो पूरा का पूरा उसके फेस पे रहता है, जो भी सब्जेक्ट है उसके फेस पे रहता है। तुम्हें जो हाईलाइट करना है उसका फेस हाईलाइट करना है। तो इसीलिए पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बाद जब आती है तब तुम्हारा जो अपर्चर है वो f2.0 रहता है। तो उसके बाद में तुम बोलोगे कि हमको लैंडस्केप खींचना है। तो लैंडस्केप मतलब तुम अगर माउंटेन्स वाउंटेन्स में जा रहे हो और लैंडस्केप खींच रहे हो तो तुम्हें जो अपर्चर है वो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो बैकग्राउंड है या तुम्हारा जो भी तुम फ्रेम में तुम्हारा जो भी कवर हो रहे सब्जेक्ट्स वो क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लैंडस्केप खींच रहे हो और किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस है और बाकी का सारा ब्लर हो गया, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लैंडस्केप फोटोग्राफ। लैंडस्केप फोटोग्राफ इज व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन फोकस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा अपर्चर रखेंगे, मतलब f stop जो है वो ज्यादा रखेंगे। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर विद एवरीवन। इसके बारे में किसी को क्वेश्चंस है अपर्चर के बारे में? आई विल टेक वन बाय वन, लाइक आई विल कवर अप इट इन 2 minutes. Any question from your side? Any question from your I guess side? you should continue. Okay, so there are no questions from audience side. Let's continue. So अपर्चर हो गया, उसके बाद में एक्सपोजर ट्रायंगल का जो थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है शटर स्पीड। तो शटर स्पीड बहुत एक सेकेंड। ओके, तो शटर स्पीड क्या होता है?
तुम यहाँ पे अभी मैंने अपर्चर का जैसे बताया तुमको, यहाँ पे अपर्चर का एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे मुझे ये पूरा सिटीस्केप लेना था और मुझे क्लाउड्स जो है वो भी फोकस में चाहिए थे। तो लाइक डे लाइट था, तो मैंने क्या किया कि जो अपर्चर है वो 8 रख दिया, ताकि ये जो सारा जो है वो सारा फोकस में आ जाए, लाइक दिस एंड दिस टू। ठीक है, तो ये सारा फोकस में आने के लिए मैंने क्या किया, एफ जो है वो बढ़ाया, मैंने 8 रख दिया। तो वो जो सारा फ्रेम में आ रहा है वो सारा का सारा फोकस्ड है। अगर लेट सपोज मैं अगर लेट सपोज अगर मैं इस पे फोकस करता और मेरा जो अपर्चर है वो 1.8 रखता, तो क्या हो जाता, तो एक तो इस पे फोकस हो जाता और बाकी जो पीछे वाला पार्ट है वो सारा ब्लर हो जाता। तो वो सिटीस्केप एक लाइक एक टाइप का फोटोग्राफ है, तो सिटीस्केप के लिए वो अच्छा नहीं है। लाइक तुम्हें सारा का सारा दिखाना है और तो तुम्हें सारा का सारा फोकस में ही रखना होगा, तुम ब्लर करके नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लेट्स कम टू दिस फोटोग्राफ। तो ये फोटोग्राफ जो है, तो मुझे क्या दिखाना था, ये जो आदमी है वो कुछ कपड़े धो रहा था धोबी घाट में पुणे के। तो मुझे बस ये दिखाना था, मुझे बस ये पार्ट पे ज्यादा फोकस करना था। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो अपर्चर है वो 1.8 पे लेके गया। तो अपर्चर 1.8 पे लेके गया, तो मेरा जो पूरा फोकस है वो पूरा ये पार्ट पे फोकस हुआ, और बाकी का जो तुम ब्लर दिख रहे हो ये सारा का सारा ब्लर हो गया। तो तुमको एक आइडिया आया रहेगा कि एग्जैक्टली अपर्चर वैरी करने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अपर्चर दो चीजों में काम आता है। एक तो तुम्हारा जो लाइट इनटेक है वो कम ज्यादा करने के लिए, और जो इसका जो प्रायर लाइक यूज है वो है बैकग्राउंड ब्लर के लिए। तो तुम्हें अपर्चर समझा। उसके बाद में सो लेट्स Ankit, we can take a couple of questions people have asked, especially about that okay. group photo one. Group photo one. Okay, so what is the question? I think I am not able to see this question. For more clear pic, do we have to set it to less aperture? See, a clear picture is like clear picture. I don't get you. Like, what do you want to say? See, यहाँ पे दो हो सकते हैं। लाइक क्लियर पिक्चर मतलब तुम्हें एक सब्जेक्ट को फोकस में रखना है और बाकी सारा ब्लर करना है, और क्लियर इमेज मतलब तुम्हें पूरा लैंडस्केप फोकस में रखना है और पूरा शार्प रखना है। तो मैं दोनों सिनेरियोज एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर मोर क्लियर पिक्चर डू वी हैव टू सेट इट टू लेस अपर्चर। सो आई थिंक आई विल गिव दिस आंसर एज यस, बिकॉज तो क्लियर पिक्चर के लिए अपर्चर लेस क्यों होना चाहिए। हाँ, जब पोर्ट्रेट की बात आती है तो तुम्हारा जो फोकस रहता है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट पे रहता है। तो तुम अगर अपर्चर 1.8 रख रहे हो तो जो तुम्हारा जो फोकस है वो पूरा सब्जेक्ट पे जाएगा और तुम्हारा जो बैकग्राउंड है ब्लर हो जाएगा। तो जो क्लियरिटी जो है वो तुम्हारे सब्जेक्ट की ज्यादा आएगी। ठीक है, अभी आते हैं लैंडस्केप पे। तो लैंडस्केप में क्या हुआ कि ये फोटो भी क्लियर है, ऐसे नहीं बोल सकता कि ये फोटो क्लियर नहीं है। यहाँ पे अपर्चर जो है वो 8 है। हाँ, अगर लैंडस्केप में तुम्हें क्लियर इमेज चाहिए तो तुम्हारा जो अपर्चर है वो बड़ा ही रहना चाहिए। अगर तुम लैंडस्केप ले रहे हो 1.8 पे, अगर गलती से भी तुमने अगर फोकस किसी एक चीज पे किया तो तुम्हारा पूरा लैंडस्केप फोटोग्राफ खराब हो जाएगा। तो लैंडस्केप अभी ये वाला जो बात है वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि फॉर मोर क्लियर पिक डू वी हैव टू सेट इट टू लेस अपर्चर। ये डिटेल्स हो सकते हैं, लेकिन क्लियर इमेज के लिए मैं ये बोलूंगा कि तुम्हारा जो फोकल पॉइंट है वो अच्छे होने चाहिए और वो जो है वो बराबर लेवल से एडजस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट इस पे। और कुछ क्वेश्चन है? Ankit, हाँ, you mentioned something about group photo while discussing aperture. Could you please complete that point? ओके, सो जस्ट मिनट। तो ग्रुप फोटो क्या होता है कि अभी सपोज तुम्हारे पास एक सिनेरियो है कि तुम्हें ग्रुप फोटो लेना है और तुम्हारे पास जो लेंस है वो किट लेंस है। ठीक है, तो किट लेंस है या प्राइम लेंस है सपोज। तो तुम क्या करोगे कि ग्रुप फोटो क्लियर आने के लिए अभी जो नए कैमराज है उसमें क्या रहता है कि जो तुम्हारे फोकस पॉइंट्स है और कैमरा का जो मैकेनिज्म रहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है आजकल। तो पहले क्या होता था कि तुम्हें जो फोकस पॉइंट्स रहते थे वो कैमरा में अराउंड 4 to 5 फोकस पॉइंट्स रहते थे। तो जब तुम्हारे पास 4 या 5 ही फोकस पॉइंट्स है और तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो 10 या 12 है या 20 है, तो
it is really not suggested to use less aperture. I'm telling you the reason, क्योंकि जब तुम 6 फोकस पॉइंट है और तुम्हारा जो अपर्चर है वो 1.8 या 2.2 पे है, तो तुम्हारा कैमरा क्या करेगा कि वो 6 फोकस पॉइंट को 1.8 पे सेट करके जो 6 सब्जेक्ट तुम्हारे फोकस में आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करेगा और बाकी का जो है वो ब्लर करेगा, क्योंकि तुमने अपर्चर रखा है भाई 1.8 के लिए। ठीक है, तो अभी जो कैमरा आए हैं उसमें कैमराज में रहते हैं 179 फोकस पॉइंट, 200 फोकस पॉइंट, 400 फोकस पॉइंट्स। तो अभी कैमरा का जो AI है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है कि तुम्हारा सपोज 20 पीपल का जो फोटोग्राफ है, जो तुम्हारा 20 पीपल का जो ग्रुप है, अगर तुम उसको 2.0 पे भी क्लिक कर रहे हो, तो जो अगर कैमरा ने अच्छे से डिटेक्ट कर लिया 20 के 20 सब्जेक्ट को और 20 के 20 सब्जेक्ट पे अगर अच्छे से फोकस किया, तो तुम ग्रुप फोटो जो है वो 2.0 पे भी क्लिक कर सकते हो। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज मोर क्लियर। सो तुम्हारे गियर पे डिपेंड है कि भाई तुम्हारे गियर में कितने फोकस पॉइंट है। अगर तुम 4 फोकस पॉइंट है तुम्हारे गियर पे और तुम f1.8 पे क्लिक कर रहे हो, कि दिस इज नॉट लाइक अ राइट वे टू कैप्चर द ग्रुप फोटो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा फुल फ्रेम कैमरा है और तुम्हारे फोकस पॉइंट 400 या 300 है या 170 भी है, तो तुम खींच सकते हो 2.0 पे ग्रुप फोटो जो है। ठीक है, तो ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हुआ है। तो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, शटर स्पीड। तो शटर स्पीड एग्जैक्टली क्या होता है कि you can read it out. Shutter speed is how long an image is exposed to the light. It can be in milliseconds or in even minutes, as in 3 elements that affect how light. ठीक है, तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हुआ। तो एग्जैक्ट शटर स्पीड क्या होता है, तो इधर मैं बताऊंगा। यहाँ पे तुमने देखा होगा, यहाँ पे एक बार अपर्चर का वापस से देख लेना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसमें आया नहीं था रिटर्न। सी 1.4 to 1.4 to 2.84, तो ऐसा ओपनिंग दिया है उन्होंने। ठीक है, तो शटर स्पीड आता है ये पॉइंट। ठीक है, तो शटर स्पीड क्या होता है कि तुम जब भी जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई हैव क्वेरी कमिंग ओवर हियर। Balance between shutter speed and ISO at night. Yes. I'll come back to this question of you. I think Raghavendra, can you please note this question? Yeah, sure. Sir, which app have used in group photo or public places? Okay, I think Shobhit has answered it. So let's come to the shutter speed. तो शटर स्पीड क्या होता है, तुमने अभी देखा होगा कि कैमरा जो रहता है, एक सेकेंड, मैं तुम्हें एक फोटो दिखाऊंगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। शटर स्पीड, तो शटर स्पीड क्या होता है कि जब तुम डिजिटल कैमरास यूज करते हो, तब तुम जब फोटो क्लिक करते हो ना, तो एक शटर का आवाज आता है। तो यहाँ पे लाइक मेरे पास एक कैमरा है, तो व्हाट आई एम डूइंग, तो मैं तुम्हें अभी पता नहीं ये साउंड तुम्हें आएगा कि नहीं। ठीक है, ये जो आवाज आ रहा है उसको बोलते हैं शटर साउंड। लाइक जो भी शटर का कॉल है, जो भी शटर का साउंड है वो ऐसे आया है। तो अभी ये शटर का जो साउंड है उसका क्या मतलब है, मैं बताऊंगा कि जब तुम डिजिटल कैमरा यूज कर रहे हो, DSLR यूज कर रहे हो, तब जो शटर है, लाइक तुम्हारे इमेज सेंसर के आगे एक शटर रहता है। तो जब वो शटर ओपन होता है या क्लोज होता है, और उसका जो टाइमिंग है, लाइक वो हमेशा क्लोज रहता है इमेज। जब तुम फोटो क्लिक करते हो तब उतने टाइम के लिए वो शटर ओपन होता है, बाद में वापस से क्लोज हो जाता है। तो उसका जो ओपनिंग टाइम है, लाइक वो कितने सेकंड्स के लिए ओपन रहेगा, उसको बोलते हैं हम शटर स्पीड। तो शटर स्पीड जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 अपॉन जो भी सेकंड्स है या फिर सेकंड्स में डिफाइन करते हैं। तो जो डिजिटल कैमराज रहते हैं उसमें शटर स्पीड कहाँ से होती है, उसमें अराउंड 30 सेकेंड्स टू 1 अपॉन 4000 सेकेंड्स।
ठीक है। तो शटर स्पीड जो है, हाँ, और एक किसी ने अगर DSLR वगैरह यूज किया होगा तो मैं एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि उसमें एक रहता है बल्ब मोड करके। तो बल्ब मोड बेसिकली ये रहता है कि तुमको अगर सपोज 35 सेकेंड्स रखना है तुम्हारा जो शटर स्पीड है वो, तो तुम क्या करोगे कि कैमरा का जो बटन है वो दबा के रखोगे 35 सेकेंड्स के लिए। जैसे तुम बटन छोड़ोगे वैसे तुम्हारा जो अपर्चर है वो जो शटर है वो वापस से बंद हो जाएगा। तो 35 सेकेंड्स के लिए शटर खुला रहेगा, वापस से बंद हो जाएगा। तो लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट। अभी शटर का तुमने देखा कि अभी हाँ तुमको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक्सपोजर ट्रायंगल जो है वो पूरा लाइट, मतलब इट इज मोर फोकस्ड ऑन लाइट। तो शटर स्पीड में क्या होता है, इसमें भी लाइट वेरी होती है। तुम बोलोगे कैसे होती है, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो शटर का ओपन टाइम जो है, लाइक सपोज तुमने अगर शटर स्पीड है वो लेट सपोज तुमने 1/10 सेकेंड्स के लिए तुमने कैमरा का सेंसर जो है वो ओपन रखा है या शटर ओपन रखा है, तो उतने टाइम में तुम्हारा जो भी लाइट कैमरा में आ रहा है वो सारा इमेज जो कैमरा का सेंसर है वो कैप्चर कर लेगा और तुमको जो आउटपुट है वो दे देगा। तो तुम बोलोगे कि अगर सपोज 1/4000 रखा तुमने शटर स्पीड, ठीक है, तो 4000 में क्या होता है, तो 4000 में क्या होता है कि तुम्हारा जो शटर है वो ओपन रहेगा फॉर दैट टाइम ओनली, 1/4000 सेकेंड्स के लिए तुम्हारा शटर। तो तुम बोलोगे इतना कम टाइम है। हाँ, तो ये कब करता है यूज, ठीक है। तो ये सब बात हुई लाइट की, तुमको ये लाइट का क्लियर हो गया कि जितना ज्यादा टाइम तुम्हारा जो शटर है वो ओपन रहेगा उतना ज्यादा लाइट आएगा। तो शटर का टाइम जितना ज्यादा, मतलब सपोज अगर 15 सेकंड तुम्हारा शटर खुला है तो वो 15 सेकंड में तुम्हारे क्या लेंस के, मतलब लेंस के सामने जो भी चीजें हो रही है वो पूरा कैमरा कैप्चर कर लेगा। तुम्हारा जो सेंसर है वो कैप्चर कर लेगा, जो भी पूरी लाइट आ रही है, जो भी पूरे मूवमेंट्स हो रहे हैं वो पूरा कैप्चर करेगा और उसको एक इमेज फॉर्म में करके तुमको आउटपुट दे देगा। अभी ये हो गया 15 सेकंड वाला। 1/4000 वाला क्या है कि 1/4000 सेकेंड्स में तुम्हारे कैमरा के सामने या तुम्हारे सेंसर के सामने जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है उसको फ्रीज करके वो तुमको आउटपुट दे देगा। तो ये कब करते हैं चेंजेस, तो अभी ठीक है, ये शटर स्पीड कब करती है, कब यूज करना है, अभी लाइट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। तो शटर स्पीड का जो मेन फायदा है वो है मूवमेंट फ्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा था, लाइक शी इज वन ऑफ माई फ्रेंड, तो उसको क्या बोला कि मैंने तू जाके उधर खड़ी रहना, तो लाइक वो स्टेडी थी, ठीक है, और ये जो साइड से जो गाड़ी वगैरह जा रही थी वो मूविंग थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने मेरा जो अपर्चर और आईएसओ है वो मैंने एडजस्ट कर लिया और आइडियली एडजस्ट कर लिया, और जो शटर स्पीड है वो मैंने 1/10 सेकेंड्स के लिए रखा। लाइक मेरे कैमरे के सामने 1/10 सेकेंड्स के लिए मेरा शटर ओपन रहा और वो 1/10 सेकेंड्स में जितनी भी ज्यादा मूवमेंट हुई वो मूवमेंट मेरे कैमरे ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो मुझे जो आउटपुट मिला वो ये मिला, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो स्टेडी है, ये सब्जेक्ट जो है वो मूविंग है, ठीक है। तो उसके बाद में ये इमेज पे आते हैं। अभी वैसा सेम इधर ऐसा हुआ कि ये हुआ कि जो अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला तुम देख सकते हो कि ये नॉर्मल अम्ब्रेला है, लाइक कलर्ड अम्ब्रेला तुम बोल सकते हो। कि मैंने क्या किया कि उसको, ये जो मेरे फ्रेंड है उसको बोला कि मैंने तू स्टेडी खड़ी रहना और जो अम्ब्रेला है वो बस लाइक उसको उसका मूवमेंट कर देना। तो 1/25 सेकेंड मैंने शटर स्पीड रखा, उसको अम्ब्रेला थोड़ा सा जोर से घुमाने बताया मैंने और उनको स्टेडी रहने बोला। तो क्या हुआ कि 1/25 सेकेंड्स में तुम्हारा जो भी मूवमेंट हो रहा है कैमरा के सामने वो कैप्चर कर लिया कैमरा ने। मैंने जो आईएसओ और अपर्चर है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लिया और वो 1/25 सेकेंड में जो कैमरे के सामने आया वो मैंने इधर फोटोग्राफ कर लिया, ठीक है। ये हो गया स्लो शटर वाला, मतलब स्लो शटर मतलब तुम्हारा जो शटर स्पीड है वो थोड़ा सा कम रख के हो गया। उसके बाद में जब तुम्हारी बात आती है मूवमेंट फ्रीज करना है, या फिर कोई एक जंप कर रहा है आदमी, या फिर कोई बच्चे बच्चे कुछ नाच रहे हैं, या कोई डांस तुमको अगर कवर करना है, तो तुम्हारा जो शटर स्पीड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो हमारे कॉलेज में टीम न्यूद्रत करके है, तो उनका एक इवेंट था। तो मैंने क्या किया कि लाइक मुझे ये इवेंट कवर करने के लिए बोला गया था, तो मैंने लाइक मुझे फोटो लेना तो कभी भी अच्छा लगता है, तो मैंने क्या किया कि मैं इधर गया और जो गाड़ी का स्पीड रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है,
तो गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से अगर तुमको ये मूवमेंट फ्रीज करना है तो उसके हिसाब से तुम्हें शटर स्पीड एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो शटर स्पीड मैंने एडजस्ट कर लिया 1/3200 सेकेंड्स पे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा लग रहा है तुमको, तो देख लेना, क्योंकि ये गाड़ी इतनी फास्ट थी तो उतना शटर स्पीड लगेगा। अगर लेट सपोज मैंने आईएसओ और अपर्चर आइडियल रख दिया और शटर स्पीड मैंने 1/100 रख दिया, तो क्या होगा कि 1/100 सेकेंड्स में ये गाड़ी जितना मूव कर रही है ना उतना कैमरा कैप्चर कर लेगा। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा कि ब्लर्ड इमेज मिल जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट है, और अगर 1/100 तुम शटर स्पीड रख रहे हो तो तुम्हें जो मूवमेंट फ्रीज करना है वो मूवमेंट फ्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम कि जो 1/1000 सेकेंड्स मैंने शटर स्पीड रखा है, तो एक बिस्किट जो है लाइक सपोज दिस इज ओरियो बिस्किट, और मैंने ये ऊपर से ड्रॉप किया और 1/1000 सेकेंड्स के लिए मैंने शटर स्पीड रखा, और ये जो मूवमेंट कैप्चर हुआ वो जो कैप्चर हुआ वो 1/1000 सेकेंड्स में कैप्चर हुआ, लाइक 1/1000 सेकेंड्स के पार्ट हुए डिफरेंट डिफरेंट, और ये मुझे कुछ 8-9 इमेजेस मिल गई, उसमें से एक इमेज है। तो तुम्हें एक आइडिया आया रहेगा कि शटर स्पीड का मेन यूज क्या है। तो तुम देख सकते हो अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रायोरिटीज। तो उसके पहले मैं शटर स्पीड के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर लूंगा। Any questions for this? On shutter speed. How does 1/500 shutter speed work? For what image? For what image? Please mention it. Like, see, if you're talking about this image, so I tried it on 1/600. So what I got, जो यहाँ पे जो ड्रॉप्स दिख रहा है, ये जो ड्रॉप्स दिख रहा है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स दिख रहे हैं, देखो ये जो सर्कुलर ड्रॉप्स दिख रहे हैं, तो मुझे जो ड्रॉप्स मिले वो ऐसे मिले हैं, ये फॉर्मेट में मुझे ड्रॉप्स मिले, तो विच लुक रियली बैड फॉर मी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि भाई इतना ज्यादा नहीं करना है, तो मैंने शटर स्पीड जो है वो बढ़ा ली, क्योंकि मुझे जो लाइट आ रहा था वो सफिशिएंट था, और उसके हिसाब से मैंने आईएसओ और अपर्चर एडजस्ट कर लिया था। और कुछ क्वेश्चन है? यू कैन एक्सप्लेन विच शटर स्पीड इज यूज फॉर विच मूवमेंट्स। हाँ, तो मैंने जैसे बोल दिया कि तुमको अगर मूवमेंट फ्रीज करना है तो आई विल लाइक तुमको जो शटर स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई रखनी पड़ेगी। तुमको मूवमेंट कैप्चर करना है, लाइक जैसे ये जो मूवमेंट हो रहा है वो तुमको कैप्चर करना है एक्सपोज करके अच्छे से, और तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेडी है, तो तुम्हें स्लो शटर भी चल जाएगा, जैसे यहाँ पे किया है। जब मूवमेंट फ्रीज करने की बात आती है तो शटर स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि तुम्हारा जो लाइट इंटेक है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा शटर स्पीड अगर तुम बढ़ा रहे हो, तो उसके हिसाब से तुमको शटर स्पीड भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। हाउ टू सिलेक्ट कॉम्बिनेशन। सो गाइज हियर वी गो, हाउ टू सिलेक्ट कॉम्बिनेशन। सो वही कि भाई एक्सपोजर ट्रायंगल जो है वो तीनों पार्ट्स का तुमको अगर कॉम्बिनेशन जम गया अच्छे से, तुम तीनों के साथ खेल पाए, तो तुम्हारा जो फोटोग्राफ है वो गुड एक्सपोज फोटोग्राफ बोल सकते हो, या गुड कैप्चर्ड फोटोग्राफ बोल सकते हो। तो उसके लिए ज्यादा जरूरत है वो प्रैक्टिस की। तो देखो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर बोल दिया कि तुमको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये अभी तुमको मैंने कुछ सिनारियो दिया कि तो कि भाई ऐसा ऐसा है तुम बोल दो करके, तो तुम बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे वो तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अगर तुमको ज्यादा प्रैक्टिस है, अगर कोई एक फोटोग्राफर को बुला रहे हो जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है फोटोग्राफर, अगर तुम उसको एक सिनारियो एक्सप्लेन करोगे कि भाई ऐसा ऐसा सिनारियो है, तो शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, नहीं लाइक एक्सपोजर सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, तो वो बोल देगा, लाइक ही इज यूज्ड टू इट। अगर तुम किसी नए पर्सन को बुला रहे हो जिसने एक्सपोजर ट्रायंगल अभी अभी सीखा है, वो शायद बोल नहीं सकता है, क्योंकि तुम जितना ज्यादा उसमें एक्सपीरियंस करोगे उतना ज्यादा तुम अच्छे से खेल पाओगे ये एक्सपोजर ट्रायंगल के साथ में। कुछ और क्वेश्चंस है? Okay, it's 6:29 already, so I'll just clear this.
सो ठीक है, प्रायोरिटीज आईएसओ, अपर्चर एंड शटर स्पीड। ठीक है, तो मैं प्रायोरिटीज की बात करूं, ये प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो तीनों है, देखो जो एक्सपोजर ट्रायंगल है उसमें ये तीन चीजें मेन है। तो ये तीन चीजें तुमको अगर अच्छे से एडजस्ट कर पाए, या फिर तुम डिसाइड कर पाएगी कौन सी चीज कब एडजस्ट करनी है और कैसे एडजस्ट करनी है, तो तुमको एक्सपोजर ट्रायंगल अच्छे से समझ गया। अभी अपर्चर की तरफ, पहले आईएसओ की तरफ आते हैं। तो आईएसओ जो है वो इट इज बेटर टू कीप आईएसओ लेस। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारा आईएसओ जो है वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, अगर तुमको बढ़ाना है वो उसके हिसाब से बढ़ाओ। अगर आईएसओ 100 पे अगर तुमको अच्छे से लाइट मिल रहा है, अच्छा सा एक्सपोज इमेज आ रहा है, तो इट्स ओके। अगर आईएसओ 200 पे मिल रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा आईएसओ 100 पे अगर तुमको अच्छा इमेज मिल रहा है, तो उसको 500 पे मत लेके जाओ, क्योंकि आईएसओ 100 पे तुम्हारा जो लाइट है, तुम्हारा जो इमेज का क्लियरिटी होगा वो बहुत अच्छा होगा। जैसे जैसे तुम आईएसओ बढ़ाओगे, वैसा जो लाइट आ रहा है अंदर वो ज्यादा आएगा, बट उसके साथ वो नॉइज और ग्रेन्स भी लेके आएगा। उसके बाद में आता है अपर्चर। तो अपर्चर जो है वो भी तुमको बताया कि अपर्चर के 2 पॉइंट है, एक तो लाइट इंटेक है, उसके बाद में बैकग्राउंड ब्लर है। तुम जब पोर्ट्रेट खींच रहे हो तो तुम्हारा जो अपर्चर है वो 1.8 या 2.2 या 2 पे वैरी कर सकते हो। और जब तुम लैंडस्केप के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा अपर्चर जो है वो बहुत ज्यादा रहना चाहिए, लाइक 8, 9, 10, कई कई लोग जाते हैं F14 की तरफ जाते हैं। तो अपर्चर उसके हिसाब से, लाइक तुमको क्या कैप्चर करना है, लाइक किसी सब्जेक्ट पे फोकस करके बैकग्राउंड ब्लर करना है तो अपर्चर कम रखो। तुमको पूरा का पूरा फ्रेम अगर फोकस में चाहिए तो अपर्चर ज्यादा रखो। उसके बाद में आता है शटर स्पीड। तो शटर स्पीड का तुमको समझ गया होगा कि लाइट प्ले बहुत अच्छा है, लाइक लाइट प्ले का इंपॉर्टेंस शटर स्पीड में भी आता है। तो लाइक आई वॉन्ट टू से दैट लाइट का जो वैरी करने का जो है वो शटर स्पीड से भी कर सकते हैं, लेकिन शटर स्पीड का दूसरा यूज ये है कि तुम मूवमेंट फ्रीज कर सकते हो। तो अगर तुमको मूवमेंट कोई भी एक कोई भी एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको तुमको अगर फ्रीज करना है तो तुम्हारा जो शटर स्पीड है वो ज्यादा रखनी पड़ेगी। और तो कोई स्टेडी इमेज है या कोई स्टिल इमेज है तो उसका शटर स्पीड है वो कम रखना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम बोलोगे कि पोर्ट्रेट के लिए अगर हमने शटर स्पीड जो है वो 1/60 रख दिया तो चलेगा क्या? देखो कैसा है कि अभी जब तुम बिगिनर होते हो तो तुम्हारा कैमरे पे जो हाथ रहता है वो इतना ज्यादा नहीं बैठा होता है कि तुम्हारा हाथ जो है वो बहुत ज्यादा हिलता है, लाइक वाइब्रेट करता है। तो तुम अच्छे से स्टेडी कैमरा नहीं पकड़ पाते हो जब तुम स्टार्टिंग के फेज में होते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर अ वेल एक्सपोज फोटोग्राफ द मिनिमम शटर स्पीड इज 1/150 for still object, 1/160, sorry. Some cameras have 1/150, some cameras have 1/160। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 160 जो है वो तुम रखो, क्योंकि तुम्हारा जो फोकस, तुम्हारा हाथ भी नहीं हिलेगा और तुम्हारा जो फोकस है वो अच्छे से आएगा। Whenever we change any one setting like aperture, so there is one question I am just covering it. Whenever we change any one setting like aperture, shutter speed or ISO, so do we need to change the other two as well? Yes, yes। तो क्या होता है कि तुम अगर सपोज तुमने अपर्चर रखा है 1.8 और शटर स्पीड रखा है 1/1000 कुछ, तो ठीक है। अगर तुमको वो जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो तुमको 1/1000 पे फोटो जो है वो मोशन में मिल रहा है, लाइक वो तुमको जो फ्रीज करना है वो तुम फ्रीज नहीं कर पा रहे हो। तो तुम क्या करोगे, तुम जो तुम्हारा शटर स्पीड है वो बढ़ाओगे। तो 1 सपोज तुमने 2000 कर लिया। अगर ये तुमने अगर 1/2000 कर लिया तो तुम्हारा मूवमेंट फ्रीज तो होगा, लेकिन जो लाइट इंटेक है वो बहुत कम हो जाएगा। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम आईएसओ बढ़ाओगे। तो तुम्हारा जो ये जो बैलेंसिंग है ना, उसको बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। तो ये एक्सपोजर ट्रायंगल एक बार तुम अच्छे से एडजस्ट कर पाए ना, तो फिर तुम्हारा जो इमेज का तुम्हारा जो एक्सपोजर मिलेगा वो अच्छा मिलेगा काफी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ कि कौन सा प्रायोरिटी देना है, कौन सा नहीं देना है, और कौन सा प्रायोरिटी कब देना है। इज देयर एनी क्वेश्चन? आई विल जस्ट टेक वन क्वेश्चन। Okay, I think there are no more questions over here. ठीक है, तो आते हैं लेंस। अभी जो मैंने स्टार्ट किया था, जस्ट अ मिनट।
I think we are running out of time, so I will just cover these topics. So लेंस के बारे में जो है वो जो कैमरा गियर्स वाला जो तुम्हारा सेशन है उसके बारे में ऋत्विक बात करेगा. ठीक है. तो इसके बाद में आता है लाइट. तो लाइट तुमको जैसे बताया कि लाइट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द फोटोग्राफ. गुड फोटोग्राफर ऑलवेज रन्स बिहाइंड गुड लाइट. तो लाइट जो है वो लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब तुम फोटोग्राफी करते हो. तो लाइट यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है. एक अच्छे लाइट, ये फोटोज एडिटेड नहीं है, लाइक बस मैंने कलर से मोनोक्रोम कर दिया. एक अच्छे लाइट क्या क्या कर सकती है. तो want to click good pictures, so I will just show it. Please read this out, the 7 points. These are the 7 points. So hunt for good frames, frame in frame, unique perspectives, go minimal, play with the lights, focus, capture the details, shoot miniatures, capture stories and emotions. So I'll just show you one by one picture. Hunt for good frames. तो यहाँ पे फ्रेम देख सकते हो. तो ये ज्योमेट्रिक्स देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा है. यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है. तो एक बार Instead of rushing on this, let's take it in the next session. ओके. सो गाइज थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो मैं मेरा जो एडिटिंग वाला सेशन है उसमें कवर कर लूंगा या फिर नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम अपने पास नहीं है. लाइक इट्स ऑलरेडी 6:36. सो आई विल हैंड ओवर दिस टू माय काप्से सर. Yes, so I hope that you all enjoyed the session. All these sessions will be conducted by the students, and there may be some ups and downs. They are not the professional speakers or presenters, but they are very good in their area, whatever session they are going to conduct. So I request everyone to bear with some technical glitches that we will be facing, and also some network issues due to heavy rains and clouds. Okay, so one thing what we are going to plan is to keep a separate session for doubt clearing, separate session of for 15 to 20 minutes uh, starting from tomorrow, if the attendees are interested in clearing their doubt, so that we can go smoothly without any discontinuity in the presentation. Because I know everyone is very much interested and enthusiastic, and we are receiving n number of questions, and it becomes very difficult to address each and every question during the presentation. So what we feel is to keep a separate doubt clearing session. You can note down your doubts, queries, questions, and that can be raised during the doubt clearing sessions. So we are going to plan this session tomorrow from 4:30 for every day for next 5 days from 4:30 to 4:45 p.m. before this particular webinar. So a separate link will be created for that, and those who are interested to join this query session, doubt clearing session, they are always welcome. Okay, so here today we are going to end today's webinar. Thank you all. Meet you tomorrow. Bye bye. So I would Yes, Jyoti. like to encourage. I would like to encourage everyone to practice whatever they have learned today and send us the photos. We'll be glad to review it. And I know you will be getting some doubts as well while clicking the photograph. So we would be happy to take it up tomorrow. Okay. Anyone so there's one more thing. else would like to speak from the organizers? Yes, Yeah, we will Raghavendra. we will be circulating a Google form for taking the feedback of today's session. So it's a request for everyone to please fill the form and give your reviews. Yeah. Some of them have That's- also asked if we'll be sharing the PPT as well. Yes, we will share the PPT. You can go through it to clear your doubts. And we'll try Yes. to share the link to the whole webinar as well. You can go back to the video. You can check the video if you have any doubts.
you might have missed some point. So we'll be doing that soon. Yes. So bye bye all. We'll meet tomorrow again. Bye all. Thank you.